जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। In the last lecture we have learned about the hip joint. We have completed the hip joint region in the last lecture, and we have discussed about the operating procedures that are going to take place with hip joint pathology, their precautionary measures, their contraindications, their indications. ठीक है. Now we are going to start with the knee joint region. ठीक है. So today is our lecture number 18, in which we will discuss about the knee joint. ठीक है. And in this lecture we will focus on the anatomy, the orthokinematics, and the basic terminologies associated with the basic concepts associated with the knee joint. ठीक है. So let's start with the knee joint. First of all, in the knee joint, there are total two articulations that are present in the knee joint. The one is the tibiofemoral articulation, and the other one is the patellofemoral articulation. Now, if we talk about, first of all, we will talk about the tibiofemoral articulation. The tibiofemoral articulation is present between the tibia and the femur. Femur acts as a proximal bone and the tibia acts as a distal bone. And the femur has a convex femoral condyles, whereas the tibia has a concave tibial plateaus, or you can say that it has a flatter articular surface. ठीक है. Obviously, when we are going to describe the articular surfaces, we have to describe it as convex or concave. So that's why the tibial plateaus are more considered as a concave articular surface as compared to their flat articular surface. So femoral condyles, they are convex. They have convex articular surfaces. Tibial plateaus, they are concave articular surfaces. ठीक है. So if we talk about the tibiofemoral articulation, it is a biaxial joint. It means that there are two movements that are taking place around axis of the joint, or there are two planes in which the movement is going to occur at the tibiofemoral articulation. Now, what are the two planes at which the tibiofemoral articulation, at which the movements must occur? The one is the sagittal plane, in which knee flexion and knee extension occur, or the tibiofemoral extension and tibiofemoral flexion can occur in the sagittal plane. And in the transverse plane, there is internal rotation of the tibia and external rotation of the tibia on the femoral condyles. ठीक है. So the total degree of freedom for tibiofemoral articulation is 2. Means there are two physiological movements that are taking place at the at two planes of movement. ठीक है, around two axes of joint. ठीक है. So if we talk about the tibial, if we talk about the stability of the tibiofemoral articulation, the articulation of the tibiofemoral joint is given or is acquired by different ligaments as well as different other soft tissues. We will going to discuss it one by one. For example, if the anterior and the posterior stability of the knee joint is acquired by the anterior cruciate ligament and the posterior cruciate ligament. Now, what anterior cruciate ligament will do, it will prevent the anterior translation of the tibia on the femoral condyles, and what posterior cruciate ligament will do, it will prevent posterior translation of the tibia on the femoral condyles, excessive translation. ठीक है. There is some translation anterior as well as posterior, but the excessive translation it will be prevented by the anterior cruciate and by the posterior cruciate ligaments. ठीक है. So this is the sagittal plane stability.
ठीक है, which is given by the cruciate ligaments. Now if we talk about the medial and lateral stability, the medial side of the knee joint is stabilized by the medial collateral ligament, and the lateral side of the knee joint is stabilized by the lateral collateral ligament. ठीक है, so there are collateral ligaments that are going to be that are going to stabilize the knee joint medial on the medial side and on the lateral side. Now, between the tibiofemoral articulations, there are menisci. One is present on the medial side and one is present on the lateral side. Now, what is the function of menisci? Menisci are present to act as a shock absorber, just like the intervertebral discs in our spine. And menisci are present to increase the congruency of the articular surfaces. And which articular surfaces? Mostly the tibial plateaus. ठीक है, menisci क्यों present हैं? क्योंकि एक तो ये shock absorber के तौर पर act कर रहे हैं, और at the same time they are there to increase the congruency of the tibial plateaus. Means if there are femoral condyles that are convex in shape, so tibial plateaus must have some concavity which is given by the menisci. ठीक है, so both the menisci, they have some common connections, or they have some common attachments, medial and lateral, and they have some distinct attachments from each other. Means medial menisci is attached differently to some other structures and lateral menisci is attached to some other structures. First of all, we will talk about the common attachments these two menisci have. The medial and the lateral menisci, they are attached to each other by a transverse ligament. ठीक है, this is the first attachment. They are attached to the joint capsule as well. ठीक है, with the help of coronary ligaments, they are attached to the tibial plateaus. ठीक है, जो underneath the menisci हैं, they are attached to their tibial plateaus, and they have some attachments with the patella as well. ठीक है, so these are some common attachments of the medial and lateral menisci. Now, what are their different attachments? If we talk about the medial menisci is going to attach with the anterior cruciate ligament. The medial menisci is going to attach with the posterior cruciate ligament. The medial menisci is going to attach with the medial collateral ligament, and medial menisci is going to attach with the semimembranosus muscle. So these are the four attachments that medial menisci must have. ठीक है, and if we talk about the lateral menisci is attached to the posterior cruciate ligament, and the lateral menisci is going to attach with the popliteus muscle. The popliteus muscle is going to act as you all know that it has a significant importance in unlocking of the knee joint. ठीक है, now there is a screw home mechanism in which is used to explain the tibiofemoral function. The screw home mechanism, or you can simply say that locking of the knee joint. Now, what happens during the terminal extension of the knee joint, or during the terminal extension of the tibiofemoral articulation? The tibia externally rotates on the femoral condyles, which results in locking of the knee joint. ठीक है, this is actually the bony support that helps to keep the tibiofemoral articulation erect, with a minimal support from the dynamic structures, with a minimal support from the quadriceps muscles. ठीक है, now this screw home mechanism, it is important because if it is not there, or if it is disturbed, ठीक है, then an individual or a patient have an extra expenditure of energy from the quadriceps muscles to maintain the erect posture, or to maintain the extension of the tibiofemoral articulation. That's why this external rotation of the tibia during the terminal extension
phase of the tibiofemoral extension is important just to make sure that the tibiofemoral articulation is being locked. Okay, and this is unlocked by the contraction of the popliteus muscle, which causes the tibia to internally rotate as soon as an individual wants to flex the knee joint. Okay. Now, if we talk about the arthrokinematics of tibiofemoral articulation is described in terms of you can say that two mechanisms are there to explain the arthrokinematics of tibiofemoral articulation. The one is the open chain kinematics and the other one is the closed chain kinematics. You all have learned about open chain exercises and closed chain exercises. Simply, in open chain exercises, the distal bone is going to move, and in closed chain exercises, the proximal end is going to move. So, if we talk, first of all, in open chain kinematics, obviously the tibia will be the moving bone while the femur remains the static bone. Now, whenever the tibia is going to extend, the tibia, whenever there is extension at the tibiofemoral articulation, the tibia is going to move or is going to roll and glide in the same direction as that of the physiological movement. Means if the tibia is going to move in anterior direction during extension, the tibia is also going to roll in anterior direction and the tibia is also going to slide in the anterior direction because the tibial plateaus are concave and these concave articular surfaces are moving on the convex articular surfaces. So what happens in open chain kinematics? Concave to convex rule is going to apply. Okay. Now this is the common example is when you are sitting on a chair and you are going to extend your knee joint, okay, in the air. This mechanism will help you to understand which rule is going to apply here, and that is concave to convex rule. And for example, if your feet are stabilized, okay, if your feet are fixed, so the tibia will be act as a static bone and the femoral condyles or the femur will be the moving bone. For example, when you are going to sit on a chair, okay, now the tibia is fixed and the femoral condyles and the femur is going to move. So in closed chain kinematics, what happens? The femoral condyles, which are convex articular surfaces, they are going to move while the tibial plateaus that are concave articular surfaces, they remain static. Whenever the femoral condyles they are going to move, they will roll in same direction, ठीक है, as that of the physiological movement, but their gliding will be in opposite direction. For example, if the femoral condyles are moving, the physiological movement is occurring in the anterior direction, the rolling of the femoral condyles will follow the same direction while the gliding of the femoral condyles will be in the opposite direction, and that is posterior direction. So this is how we are going to explain the arthrokinematics of the tibiofemoral articulation. ठीक हो गया बच्चों यहाँ तक? सर जी बेटा सर क्लोज चेन में क्या समझ नहीं आई? क्रॉस क्लोज चेन में हाँ जी, क्लोज चेन में कन्वेक्स टू कनकेव रूल अप्लाई होगा. ओके सर. ठीक है, और ओपन चेन में कनकेव टू कन्वेक्स रूल अप्लाई होगा. ठीक है. सो the second articulation is the patellofemoral articulation. The patella is going to articulate with the femur. Now the patella, if you see the articular surfaces of the patella, this is covered with the hyaline cartilage. It has different facets, okay? Just like the facets of the spine, it has different facets on different positions, okay? That articulates one by one with the intercondylar groove.
Intercondylar groove is the articular surface of the femur, ठीक है, and the patella has the articular surface which is going to articulate with the intercondylar groove and forming a patellofemoral articulation. Now, whenever your knee is going to extend, ठीक है, whenever your knee is in extension, complete extension, ठीक है, there will be no articulation of the patella with the intercondylar groove, ठीक है. जब आपका नी एक्सटेंशन में है तो पेटला की आपके नी के फीमर के इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ कोई आर्टिकुलेशन नहीं रहती, ठीक है. अब वो कहता है कि पेटला की जो प्रॉक्सिमल पेटला से अगर प्रॉक्सिमल देखा जाए तो क्वाड्रिसेप मसल अटैच हो रहा है, और पेटला से डिस्टल देखा जाए तो आपका पेटलर टेंडन है जो कि अटैच हो रहा है. ऊपर से क्वाड्रिसेप मसल, नीचे से आपका पेटलर टेंडन. अब वो कहते हैं ये जो पेटलर टेंडन है ये एक्चुअली डायरेक्ट किसके ऊपर जाकर लगता है, आपके टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर जाकर लगता है, ठीक हो गया. अब वो कहते हैं यहाँ पर अगर हम फंक्शंस की बात करें, पेटला एक्ट एज अ सेस्माइड बोन इन द क्वाड्रिसेप मसल, ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है. वो कहते हैं फंक्शन इसका ये है कि एक तो ये आपकी जो क्वाड्रिसेप की कॉन्ट्रेक्टाइल फोर्स है उसको रीडायरेक्ट करता है, ठीक है, समझ आई बात की, और आपके क्वाड्रिसेप मसल के मूवमेंट आर्म को बेहतर कर देता है, ठीक है. नाउ व्हाट इज मेंट बाय इट इज गोइंग टू increase the movement arm of the quadricep muscle. Now you all see that quadricep muscle, ठीक है, it is attached proximally from at the femur, ठीक है, femoral shaft से भी उसके attachments हैं, origin हैं vastus medialis की, intermedius की, lateralis की, ठीक है, और secondly एक rectus femoris है जिसके anterior superior iliac spine से भी है, ठीक है. तो ये पूरा क्वाड्रिसेप मसल है जो कि प्रॉक्सिमली प्रेजेंट है, एंड नाउ ही दिस मसल हैज टू मूव द नी जॉइंट, ठीक है. और नी जॉइंट में आप सबको पता है कि नी जॉइंट में आप सिटिंग पोजीशन में भी बैठ सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट फ्लेक्शन में भी बैठ सकते हैं. नाउ व्हेनेवर यू आर सिटिंग विद कंप्लीट नी फ्लेक्शन, this patella will help you to arise from this sitting position into standing position. If this patella is not available there, ठीक है, obviously the quadricep muscle will remain unable to extend your knee joint, ठीक है, or remains unable to extend you from the sitting position because it will be difficult for the quadricep muscle, ठीक है. और उसके लिए ये डिफिकल्ट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर यूजेज ऑफ एनर्जी, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और फिर कहीं जाके आपकी नी जॉइंट एक्सटेंशन में जाएगी. तो विद द हेल्प ऑफ द पैटेला द मोमेंट आर्म ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट विल हेल्प इन that will help you or every individual to extend from to arise from the sitting position, ठीक है. Now if we talk about the mechanics, ठीक है, if we talk about the mechanics of the patellofemoral joint, जिसकी मैंने पहले एक statement दी है कि whenever your knee joint is in complete extension, there is no articulation of the patella with the intercondylar groove. The patella sits above the intercondylar groove when the knee is in complete extension, ठीक है. Whenever you are going to start flexing the knee joint, the patella, the lower end of the patella starts articulating with the intercondylar groove, with the superior aspect of the intercondylar groove, ठीक है. And as soon as you are going to flex the knee around 90 degrees, the patella has the complete articulation with the intercondylar groove, and after that 90 degrees the patellar articulation with the facet joint with the intercondylar groove again ends, ठीक है. Now the patella is, after 90 degree of flexion, the patella sits below the intercondylar groove, ठीक है, and sorry but
The quadricep muscle itself articulates with the intercondylar groove. ठीक है? After 90 degree of knee flexion, there is no articulation. At terminal extensions, ठीक है, there is no articulation. In between these movements, ठीक है, the patella is going to articulate. ठीक है? Obviously, during the initial flexion, ठीक है, the lower end of the patella is going to articulate with the superior portion of the intercondylar groove. ठीक है? And during the mid flexion, ठीक है, there will be more of the articulation. ठीक है? And during 90 degree of knee flexion, there will be complete articulation of the patella with the intercondylar groove, and after that the patella has no articulation with the intercondylar groove. However, there will be articulation of the quadricep muscle with the intercondylar groove. ठीक हो गया? Now patellar alignment, ठीक है, वो कहते हैं this patella must have an alignment. ठीक है? Now this patella just remain in the center and does not move either in lateral direction or either in medial direction. It maintain its center. ठीक है? Just to have the maximum advantage for the quadricep muscle. ठीक है? If it is going to move medially and if it is going to move laterally, then the advantage of the quadricep muscle is going to decrease. ठीक है? First thing. Second thing is the quadricep muscle is going to make a Q angle or a quadricep angle with the patella. ठीक है? ये जो quadricep muscle की attachment है patella के साथ, ये भी एक एंगल बना रही है जिसको हम लोग quadricep angle कहते हैं. ठीक है? वो कहते हैं ये जो quadricep angle है, ये एक्चुअली पैटेला को लेटरली पुल करने की कोशिश करता है. ठीक है? ये उसको आउट ऑफ एडवांटेज लेके जाना चाह रहा है, quadricep मसल का पुल. ठीक है? अब वो कहता है कि इस पुल को, दिस इज व्हाट वी कॉल बो स्ट्रिंगिंग इफेक्ट. वो कहते हैं कि अगर तो पैटेला की अदर सॉफ्ट टिश्यूज या सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज के साथ अटैचमेंट ना होती तो फिर quadricep मसल इसको हर दफा लेटरली पुल कर लेता और उसका मैकेनिकल एडवांटेज खत्म हो जाता. लेकिन क्योंकि इसकी सराउंडिंग में अटैचमेंट्स हैं पैटेला की विद अदर सॉफ्ट टिश्यूज, जिसकी वजह से पैटेला रिमेन्स इन द सेंटर. ठीक है? और quadricep मसल जो है वो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज के साथ काम कर पाता है. ठीक है? ऑब्वियसली पेशेंट्स के अंदर ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, मेल अलाइंड हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी. आर्थराइटिस होगा, ठीक है, तब डिस्टर्ब होंगी. हाइपोमोबिलिटी होगी तब डिस्टर्ब होगी. अब वो कहते हैं सिंपली हाइपोमोबिलिटी हो पैटेला की, ठीक है, तो ऑब्वियसली नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो लॉस हो सकती है. ठीक है? ज्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, आपकी नी की एक्सटेंशन के ऊपर. ठीक है? समझ आई बात की नी की फ्लेक्शन के ऊपर शायद इतना फर्क ना पड़े, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ेगा, आपकी नी की एक्सटेंशन के ऊपर, क्योंकि एक्चुअली तो पैटेला किसका काम करे, quadricep मसल का. So whenever there is the hypomobility of the patella or there is malalignment of the patella, there will be a serious disadvantage for the quadricep muscle. ठीक हो गया? Now वो कहते हैं what are the forces that are going to maintain the alignment of the patella. These are the forces showing on your screen. The first one is the bony articulation. ठीक है? The intercondylar groove itself maintains the alignment, helps to keep the patella in its centrum. ठीक है? Q angle का मैं बेटा आप लोगों को आगे जाके डिफाइन करता हूँ, what is Q angle and how we are going to measure it. ठीक है? So first of all is what are the mechanisms? The first one is the intercondylar groove that is going to make the that is going to maintain its stability or its alignment. ठीक है? The second one is medial and lateral ligaments on each side. ठीक है? Now there are superficial retinaculum, extensor retinaculum. ठीक है? And there is the medial and lateral ligaments. ठीक है? Now the extensor retinaculum and the medial and lateral ligaments, they are going to stabilize the patella in its transverse plane. ठीक है? Means के medial and lateral stability provide करते हैं आपका extensor retinaculum भी और आपका
मीडियल एंड लेटरल पैटेलोफेमोरल लिगामेंट्स भी, जो पेटला के अटैचमेंट्स है विद द फीमर। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनली, ठीक है, द quadriceps मसल इटसेल्फ, ठीक है, और द पेटलर टेंडन इटसेल्फ, दे आर गोइंग टू मेंटेन द अलाइनमेंट। ठीक है, सही है। मीडियोलेटरली आपके एक्सटेंसर रेटिकुलम में है, मीडियल एंड लेटरल लिगामेंट्स हैं, और लॉन्गिट्यूडिनली आपके पास quadriceps मसल है और नीचे आपका पेटलर टेंडन है जो कि पेटला को स्टेबलाइज करेगा, पेटला की अलाइनमेंट को मेंटेन करेगा। ठीक हो गया। नाउ वो कहते हैं कि व्हाट आर द पेटलर ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द पेटला, और व्हाट इज द मेल अलाइनमेंट ऑफ द पेटला। ठीक है, इसके लिए हम लोग सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं व्हाट डू यू नो अबाउट क्यू एंगल और द क्वाड्रिसेप एंगल। ठीक है जी बच्चों, समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। So quadriceps angle is actually you have to draw two lines from the center of the patella. ठीक है, the one line is going to meet the anterior superior iliac spine, ठीक है, while the other line remains in the center of the patella। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ पैटेला से आपने दो लाइंस ड्रॉ करनी है। एक लाइन कहां चली जाएगी? टुवर्ड्स द इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और एक लाइन क्या करेगी? बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, समझ आ गई बात की? बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में। सो वेयर whenever when you have drawn these two lines, you have to calculate the angle between these two lines। ठीक है, वो कहते हैं this angle is known as quadriceps angle, और ये वो कहता है मेल्स के अंदर 10 डिग्रीज तक होता है और फीमेल्स में 15 डिग्रीज तक भी जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली ड्यू टू द वाइडनिंग ऑफ द pelvis, ठीक है, फीमेल्स हैव अ ग्रेटर क्यू एंगल एज कंपेयर टू द मेल्स। ठीक हो गया। सो 10 to 15 डिग्री ऑफ quadriceps एंगल इज नॉर्मल। ठीक है, और वो कहता है कि ये क्यों बन रहा है क्वाड्रिसेप एंगल? क्योंकि क्वाड्रिसेप मसल पुल ऐसे कर रहा है, पेटेला को इस डायरेक्शन में पुल कर रहा है। ठीक हो गया। नाउ यहां पर आप सबको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, ये दो लाइंस हैं, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में, ठीक है, y एक्सिस के अलोंग, ठीक है, और ये दूसरी जो है दिस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेटला टुवर्ड्स द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है हमने उसको मेजर कर लेना है कि क्या एंगल बन रहा है बिटवीन दीज टू लाइंस। ठीक हो गया। दिस इज नोन एज क्वाड्रिसेप एंगल। नाउ व्हाट इज पेटलर मेल अलाइनमेंट? ठीक है, वो कहता है कि whenever there is an increase in quadriceps angle, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं नॉर्मली अगर quadriceps angle 10 to 15 डिग्री का प्रेजेंट है, ठीक है, हमने मान लिया ये प्रेजेंट है, और ये पेटला को लेटरल डायरेक्शन में पुल कर रहा है, ये भी मान लिया, लेकिन एट द सेम टाइम पेटला हैज इट्स अटैचमेंट। ठीक है, पेटला के पास पैसिव और डायनामिक रिस्ट्रेंट्स हैं, पैसिव और डायनामिक स्टेबलाइजर्स हैं जो कि पेटला को लेटरली मूव होने से बचाते हैं ड्यू टू द पुल ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल। सो वो कहता है व्हेनेवर दिस क्वाड्रिसेप एंगल इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, जब क्वाड्रिसेप का एंगल इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, वो उसकी वजह बताते हैं क्वाड्रिसेप का एंगल किस वजह से इंक्रीज होता है। वो कहते हैं अगर क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीज कर जाता है तो उसकी वजह से पेटला की मेल अलाइनमेंट होगी। ठीक है, सही है, पेटला मेल अलाइंड होगा, पेटला का जो लेटरल पेटला की जो अलाइन डायरेक्शन होगी ग्लाइडिंग की वो लेटरल हो जाएगी, वो उसके सेंटर में नहीं रहेगी, जिसकी वजह से पेटला का जो लेटरल फेसेट है वो इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ क्या करेगा? कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करेगा, फ्रिक्शन फिल मूवमेंट होगी और वहां पर डिजेनरेटिव चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक हो गया, यहां तक बात की समझ आ गई है? नाउ कहते हैं कि क्वाड्रिसेप एंगल कब इंक्रीज होता है? ठीक है, एक तो कहता है कि पेल्विस जब वाइड हो जाए तब क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, नाउ सिंपली अपने इमेज में देखें, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, ठीक है, जैसे जैसे एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन बाहर की तरफ मूव करेगा,
ऑब्वियसली वाइडेंड पेल्विस का मतलब क्या है कि एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन सेंटर से दूर हो रहा है, ठीक है, और जैसे जैसे एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन दूर होगा क्वाड्रिसेप एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। समझ आ गई बात की, ठीक है जी सर। सही है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई द क्वाड्रिसेप एंगल इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है। सो विद द हेल्प विद वाइड पेल्विस द क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीजेस। femoral anteversion, ठीक है, anterior bending, ठीक है, femoral neck की on the femoral shaft, ठीक है, वो कहते हैं ये जो anterior bending होती है femoral neck की on the femoral shaft, ठीक है, it will also going anterior rotation, sorry anterior pelvic नहीं कहें, anterior rotation of the femoral neck on the femoral shaft, ठीक है, और द condyles, ठीक है, जब वो anteriorly rotate कर जाएं, ठीक है, तो वो कहते हैं दिस इज फिमोरल एंटीवर्जन, और वो कहते हैं जब भी फिमोरल एंटीवर्जन होगी तब भी जो आपकी पेटला होगी, ठीक है, इट विल नाउ पेटला पहले यहाँ पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल के अगर यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, लेट्स से, तो जिसमें फिमोरल एंटीवर्जन होगी उसके मीडियली मूव कर जाएगी, सिर्फ किस वजह से, क्योंकि फिमोरल एंटीवर्टेड है, ठीक है, फिमोरल की नेक और फिमोरल के कंडाइल्स का जो एंगल बन रहा है वो क्या हो गया, एंटीरियर डायरेक्शन में कम हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो पेटला होगी वो क्या होगी, मीडियल साइड पे मूव कर जाएगी। तो जैसे ही पेटला मीडियल साइड के ऊपर मूव करेगी तब भी आपका एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से एंगल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी क्वाड्रिसेप एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपका एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन अपनी जगह पर रहेगा, लेकिन क्योंकि पेटला अंदर की तरफ मूव कर रही है तो क्वाड्रिसेप एंगल ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कॉक्सा वेरा। कॉक्सा वेरा क्या है कि हिप्स का बाहर की तरफ मूव कर जाना, हिप जॉइंट का इटसेल्फ बाहर की तरफ मूव कर जाना, या जो ग्रेटर ट्रोकेंटर्स है इनका बाहर की तरफ मूव कर जाना, इसकी वजह से भी आपका क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीज कर जाएगा, जस्ट बिकॉज कि जी जब आपके हिप जॉइंट जो है वो बाहर की तरफ मूव करता है तो आपका एंटीरियर जो आपकी पेल्विस है वो भी क्या करती है, लाइक दिस, ये पेल्विस है ना, अगर इसकी ये नॉर्मल पोजीशन है तो पेल्विस भी ओपन अप हो जाती है, अवे मूव कर जाती है, जिसकी वजह से ये जो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन है ये भी बाहर चली जाती हैं, ठीक है। जीनुवेल्गम, जीनुवेल्गम क्या है, नॉक नीज है, ठीक है, जब नॉक नीज होंगे, ठीक है, तब भी आपकी पेटला क्योंकि सेंटर में आ रही है तब भी एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से क्वाड्रिसेप का एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहते हैं जब टिबियल टिब्रोसिटी जो होती है लेटरली डिस्प्लेस हुई हो, कहते हैं कि जब आपकी टिबियल ट्यूब्रोसिटी लेटरली डिस्प्लेस हुई हो तब भी आपका क्वाड्रिसेप एंगल क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि टिबिया की एक्सटर्नल रोटेशन, ठीक है, ये भी आपके क्वाड्रिसेप एंगल को इंक्रीज कर देगी, ठीक है। फीमर की इंटरनल रोटेशन, ठीक है, क्योंकि टिबिया अगर एक्सटर्नली रोटेट हो रही है और अगर फीमर इंटरनली रोटेट होगी तो दोनों का इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, क्वाड्रिसेप एंगल के ऊपर आएगा, ठीक है, दोनों में क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट में है प्रोनेटेड सबटेलर जॉइंट, ठीक है। प्रोनेटेड सबटेलर जॉइंट का मतलब क्या है कि आपका जो सबटेलर जॉइंट है इट इज गोइंग टू बी एबडक्टेड, ठीक है, और एक्सटर्नली रोटेटेड, ठीक है। ये जो इवर्टेड, एबडक्टेड और एक्सटर्नल रोटेशन है इसकी आपके सबटेलर जॉइंट की, ये भी क्या करेगी, आपके क्वाड्रिसेप एंगल को इंक्रीज कर देगी। नाउ व्हाट हैपेंस, ये तीनों चीजें बेटा एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जहां पर कॉक्सा वेरा होगा वहां पर जीनू वेलगम होगा, और जहां पर जीनू वेलगम होगा वहां पर सबटेलर जॉइंट की प्रोनेशन होगी, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, अगर आप लाइक दिस, ठीक है, ये कॉक्सा वेरा, जीनू वेलगम और वहां पर प्रोनेशन ऑफ द सबटेलर जॉइंट, ठीक है। सो इट विल हेल्प, नजर नहीं आया, विजिबल ही नहीं हुआ, कैमरा नजर आ रहा है कि नहीं, सर कैमरे को थोड़ा नीचे बात करें। जी सर ठीक है। सो हियर एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है,
कॉक्सा वेरा यहाँ पर डेवलप होगा, ठीक है, जीनू वेलगम यहाँ पर डेवलप हो रहा है, तो आपके सबटेलर जॉइंट्स के ऊपर प्रोनेशन डेवलप हो रही है। ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है, और तीनों चीजों में आपका क्वाड्रिसेप एंगल क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। ना वो कहते कि अब हमने देखना है कि मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पेटला या मीडियल ग्लाइडिंग ऑफ द पेटला, मीडियल पुल ऑफ द पेटला को कौन कौन सी चीजें रिस्ट्रिक्ट करेंगी और कौन कौन सी चीजें प्रमोट करेंगी, और लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल ग्लाइडिंग ऑफ पेटला को कौन कौन सी चीजें डिस्प्लेस कौन कौन सी चीजें वो करवाएंगी, ज्यादा करवाएंगी, और कौन कौन सी चीजें उसको प्रिवेंट करवाएंगी। ना वो कहते हैं कि जी इलियोटिबियल बैंड अगर टाइट हो जाए आपका, क्योंकि वो लेटरल साइड के ऊपर होता है और उसकी डायरेक्ट अटैचमेंट होती है विद द पेटला, ठीक है, अगर ये टाइट हो जाता है तो ये पेटला की मीडियल ग्लाइडिंग को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। वो कहते हैं कि इसी तरीके से जो आपके प्लांटर फ्लेक्सर्स हैं, ठीक है, अगर ये प्लांटर फ्लेक्सर्स टाइट हो जाएं तो ये प्रोनेशन को प्रमोट करेंगी। किसकी प्रोनेशन को, जो हमने पहले बात की कि जी सबटेलर जॉइंट आपका प्रोनेटेड पोजीशन में जाएगा तो भी आपका क्वाड्रिसेप एंगल इंक्रीज कर जाएगा। सो प्लांटर फ्लेक्सर्स की कॉन्टिन्यूस स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही है। फिर वो कहते हैं कि जी जो आपका रेक्टस फेमोरस हो जाए या हैमस्ट्रिंग अगर टाइट हो जाए, ठीक है, या आपका रेक्टस फेमोरस टाइट हो जाए या फिर आपका हैमस्ट्रिंग मसल टाइट हो जाए, ठीक है, तो दोनों लेटरली डिस्प्लेस करेंगे टिबिया आपकी किसको, पेटला को, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर मीडियल साइड का कैप्सूल, ठीक है, नी जॉइंट का कैप्सूल और वास्टस मीडियालिस ओब्लिकस, ठीक है, वीएमओ, ये वीएमओ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि वीएमओ जो है वास्टस मीडियालिस का पार्ट है, ठीक है, और ओब्लिकस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ओब्लिक एंगल के अंदर मसल फाइबर्स की अरेंजमेंट है और इसके डायरेक्ट अटैचमेंट होती है पेटला के ऊपर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर ये वास्टस मीडियालिस ओब्लिकस वीक हो जाए, ठीक है, या फिर जॉइंट कैप्सूल आपका वीक हो जाए, तो तब भी आपकी ग्लाइडिंग क्या होगी पेटला की, टुवर्ड्स द मीडियल साइड, टुवर्ड्स द लेटरल साइड, ऑब्वियसली वो लेटरल साइड के ऊपर मूव करेगा, ठीक हो गया पेटला आपका। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपके पास हिप एब्डक्टर्स की और हिप एक्सटर्नल रोटेटर्स की वीकनेस आ जाती है, तो तब आपका वो कहते हैं कि फीमर के ऊपर क्या आना शुरू हो जाएगी, एडक्शन आएगी, ठीक है। और जब वो कहते हैं फीमर के ऊपर एडक्शन आएगी तो नी जॉइंट के ऊपर अल्टीमेटली क्या आएगा, वेल्गस स्ट्रेस आएगा, जीनू वेल्गस डेवलप होने की कोशिश होगी, और जैसे वो कहते हैं जीनू वेल्गस डेवलप होगा तो ऑब्वियसली आपकी क्या हो जाएंगी, पेटला की मेल अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सो दीज आर द कॉजेज, डिफरेंट उन्होंने सिनेरियोस बताए हुए हैं। नाउ व्हाट इज पेटेलर कंप्रेशन, ठीक है, पेटला की कंप्रेशन क्या है। वो कहता है कि जब भी पेटला आर्टिकुलेट करती है इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ तो पेटला की कंप्रेशन होती है, ठीक है, और पेटला की कंप्रेशन तब भी होती है जब आपका क्वाड्रिसेप मसल क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। वो कहते हैं जब भी आपका क्वाड्रिसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा पेटला इंटरकोंडाइलर ग्रूव के ऊपर प्रेसिंग करेगी। अब वो कहता है इस कंप्रेशन से बचने के लिए एक तो अल्लाह ताला ने हाइलाइन कार्टिलेज रखा हुआ है, ठीक है। फिर सेकंड इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वो कहते हैं कि जैसे जैसे नी फ्लेक्शन ज्यादा होती जाती है तो क्वाड्रिसेप की कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ज्यादा होती जाएगी ना। लेट्स से आप नी जॉइंट को 90 डिग्री पर फ्लेक्स कर दो और जब वहां से उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली वहां पर क्वाड्रिसेप मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स सबसे ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं उस जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने जब भी कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जिस डायरेक्शन जहां पर ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल बियॉन्ड 90 डिग्री, तो वहां पर पेटला की इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ कोई आर्टिकुलेशन है ही नहीं, जिसकी वजह से वहां पर कंप्रेशन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। ऐसे ही पहले बताया ना कि 90 डिग्री फ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि आपका जो मसल है इट्सल्फ वो क्या करेगा,
आर्टिकुलेट कर लेगा विद द खुद अटैच हो जाएगा। नहीं, अटैच नहीं हो जाएगा, विद इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ उसकी आर्टिकुलेशन हो जाएगी, क्योंकि वो डिसेंड करेगी ना आपकी पेटला, तो वहां पर आपका क्वाड्रिसेप मसल जो है वो आर्टिकुलेट करना शुरू हो जाएगा उस टाइम पे जब आपकी नी फ्लेक्शन 90 डिग्री से बियॉन्ड है, ठीक है। तो इसकी वजह से पेटला की कंप्रेशन इंटरकोंडाइलर ग्रूव के ऊपर मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। फिर वो कहता है कि ड्यूरिंग टर्मिनल एक्सटेंशन तब भी पेटला क्या होता है, इंटरकोंडाइलर ग्रूव से ऊपर होता है, ठीक है, ऐसे ही है ना। पेटला तब भी आर्टिकुलेट नहीं कर रहा होता, इसके पीछे भी एक वजह है। वो कहता है कि जब आपका पेटला जो है वो इंटरकोंडाइलर ग्रूव से ऊपर होता है, ठीक है, जब वो आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, तो तब भी आपकी टर्मिनल एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, या ड्यूरिंग ये जो 15 से लेके 0 डिग्री की एक्सटेंशन है, 15 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन से लेके 0 डिग्री की जो एक्सटेंशन है, इसमें क्वाड्रिसेप मसल को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है। वो कहता है टू कीप द टू एक्सटेंड द नी जॉइंट कंप्लीटली, कहते हैं जब नी जॉइंट को एक्सटेंड करना पड़ता है, ठीक है, तब भी क्वाड्रिसेप मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स सबसे ज्यादा होती है टर्मिनल एक्सटेंशन के अंदर। उस टाइम पर भी आपके पेटला की इंटरकोंडाइलर ग्रूव के साथ कोई आर्टिकुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से पेटला के ऊपर कोई कंप्रेशन नहीं आता, ठीक है। कंप्रेशन कब आएगा, 15 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, ठीक हो गया। नाउ मसल फंक्शंस, ठीक है, आप सबको पता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। द वन इज द क्वाड्रिसेप मसल ग्रुप, द अदर वन इज द हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप, और एक आपके पास आ जाता है ऑन द मीडियल साइड, ठीक है, पेस एंसेरिनस मसल ग्रुप, ठीक है। अब वो कहते हैं कि क्वाड्रिसेप मसल का क्या काम है। क्वाड्रिसेप मसल का एक काम ये है कि वो नी को एक्सटेंड करेगा, ठीक है, ये उसका प्राइम एक्शन है। लेकिन जब नी जॉइंट फ्लेक्स हो रहा होगा तो क्वाड्रिसेप मसल कॉन्टिन्यूसली इसेंट्रिकली उसकी फ्लेक्शन को कंट्रोल कर रहा होगा, ये उसका दूसरा काम है, ठीक है। फिर वो कहता है हैमस्ट्रिंग का पहला काम क्या है, कि ये प्राइम एक्शन क्या है कि वो नी की फ्लेक्शन को कंट्रोल, नी की फ्लेक्शन करवाता है, कंट्रोल नहीं कह रहा मैं, नी की फ्लेक्शन करवाता है। और दूसरा उसका क्या काम है कि जब नी एक्सटेंड हो रहा होता है तो नी की एक्सटेंशन को कंट्रोल करता है इसेंट्रिकली, ठीक है। दोनों के दो दो काम है, सही है। कंट्रोल मूवमेंट भी प्रोड्यूस करवाना, लेकिन एट द सेम टाइम कंट्रोल भी मेंटेन रखना, ठीक है, क्योंकि दीज आर द लार्ज मसल ग्रुप्स। अगर इनमें कंट्रोल ना डेवलप होता या इनको कंट्रोल ना सिखाया जाता करते, एक अब्रेसिव कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस होती, ठीक है, जिसकी वजह से एक डैमेजिंग फोर्सेस आपके जॉइंट्स के ऊपर पड़ना शुरू होती, ठीक है। सो देयर आर सम रिस्ट्रेंट्स, ठीक है, कि जो क्वाड्रिसेप मसल है वो कंट्रोल भी करता है एक्टिवली नी की फ्लेक्शन को। अगर लेट से हैमस्ट्रिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद नी को फ्लेक्स करवा रहा है, तो एट द सेम टाइम क्वाड्रिसेप मसल इसेंट्रिकली उसको नी जॉइंट को फ्लेक्स करवा रहे हैं, ठीक है, कि कितना फ्लेक्शन अलाउ होनी चाहिए, ठीक है। जी सर, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने पहले बात की ना आपको कि जी पेटला, एक तो हाँ, सबसे ज्यादा जो पेटला के ये है क्वाड्रिसेप मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स, एक तो वो प्रोड्यूस होगी तब जब वो 90 डिग्री से बियॉन्ड फ्लेक्शन करवा रहा, 90 डिग्री से बियॉन्ड फ्लेक्शन के बाद एक्सटेंशन करवा रहे हैं जॉइंट की, तब क्वाड्रिसेप मसल की कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली बियॉन्ड 90 डिग्री जितनी भी फ्लेक्शन होगी उसको जब एक्सटेंड करना होगा तो क्वाड्रिसेप मसल को ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और एक मैंने बताया कि जी 15 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन से लेकर 0 डिग्री टर्मिनल एक्सटेंशन की जो फेज है वहां पर क्वाड्रिसेप मसल को सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस करनी पड़ती है। उसके लिए उसने कहा कि वो कहते हैं कि इट्स ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन द लेवरेज, पेटला का जो ग्रेटेस्ट इफेक्ट है
on the leverage of the quadriceps muscle, it rapidly diminishes from 15 to 0 degree of extension, ठीक है, which means that यहाँ पर पैटेला जो है वो आपके quadriceps muscle को कोई leverage नहीं दे रही, यहाँ पर quadriceps muscle ने खुद ब खुद ही क्या करना है, 15 से 0 डिग्री की एक्सटेंशन को कंप्लीट करना है। तो ये 15 से 0 डिग्री की एक्सटेंशन को अगर वो कंप्लीट करेगा तो वो क्या होगा, इसका मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स वहां पर प्रोड्यूस होगी क्वाड्रिसेप्स मसल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पैटेला को एडवांटेज नहीं दे रही। कहते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स है ये मैक्सिमम प्रोड्यूस होती है बिटवीन 70 एंड 50 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन, ठीक है, मतलब 70 डिग्री से 50 डिग्री की नी एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, फ्रॉम नी फ्लेक्शन 70 डिग्री से वापस 50 डिग्री पर जाने के लिए ऑब्वियसली वहां पर नी जॉइंट की एक्सटेंशन हो रही है, तो वहां पर वो कहते हैं सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स प्रोड्यूस होती है आपके क्वाड्रिसेप्स मसल की, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहते हैं कि जैसे नी फ्लेक्सिस के बारे में मैंने बता दिया कि एक तो इनका काम क्या है कि इन्होंने नी जॉइंट की फ्लेक्शन करवानी है और दूसरा क्या करवाना है, इन्होंने कंट्रोल करना है नी जॉइंट की एक्सटेंशन को, ठीक है, जब क्वाड्रिसेप्स मसल क्या कर रहा होगा, कॉन्सेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करवा के नी जॉइंट को एक्सटेंड करवा रहा होगा, ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं पेस एंड सेरेनस मसल ग्रुप, ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने रखा हुआ एक्रोनियम सरदार गंडा सिंह, ठीक है, सरदार गंडा सिंह, ये बॉर्डर का नाम है बेटा कसूर वाली साइड के ऊपर, तो सरदार गंडा सिंह इज सरदार से सार्टोरियस, गंडा से गंडा इज फॉर ग्रेसिलिस, ठीक है, एंड सिंह इज फॉर सेमीटेंडिनोसिस, ठीक है। ये जो पेस एंड सेरेनस मसल ग्रुप है ये आपके नी जॉइंट को मीडियल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मीडियल साइड के ऊपर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, और टिबिया की रोटेशन को इफेक्ट करता है ड्यूरिंग क्लोज चेन काइनेमैटिक एक्सरसाइजेस, जब आपके जो फीट हैं वो क्या हो, फिक्स्ड रहें, ठीक है। अब अगर हम नी जॉइंट और गेट की बात करें, ठीक है, तो कहते हैं कि ड्यूरिंग नॉर्मल गेट, ठीक है, 0 से 60 डिग्री की मूवमेंट होती है नी जॉइंट के ऊपर, 0 डिग्री एक्सटेंशन और 60 डिग्री क्या है आपकी स्विंग, 60 डिग्री की आपकी फ्लेक्शन है नी जॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब उसका मैं आपको बताता हूं कि क्वाड्रिसेप्स मसल क्या करता है, ठीक है, वो कहता है कि सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स मसल क्या करता है कि जब भी आपका इनिशियल कांटेक्ट होता है, ठीक है बेटा, मैं सबको नजर आ रहा है? यस सर। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं क्वाड्रिसेप्स मसल सबसे पहले क्या कंट्रोल कर रहा है, कहते हैं कि इनिशियल कांटेक्ट ड्यूरिंग द अमाउंट ऑफ नी फ्लेक्शन ड्यूरिंग द इनिशियल कांटेक्ट फेज, वो कहते हैं कि ये जब आपने इनिशियल कांटेक्ट किया, ठीक है, विद द फ्लोर, हील आपकी स्ट्राइक हुई, ठीक है, हील जैसे ही स्ट्राइक होती है उसके बाद आपका फुट जो होता है वो ऐसे फ्लैट होने की तरफ जाता है, फ्लैट फुट जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब फ्लैट फुट वो पैथोलॉजी नहीं, हम ये जो गेट के साइकिल्स होते हैं इसको फर्दर डिवाइड करते हैं कि स्टैंस फेज में एक हील स्ट्राइक आती है, एक फुट फ्लैट आता है और फिर टो हील ऑफ आती है, फिर टो ऑफ आता है, ठीक है। सो वो कहता है कि जैसे ही हील स्ट्राइक होगी और आपका जो फुट है वो फ्लैटनेस की तरफ जाएगा तो एट द सेम टाइम मेरे इस नी के ऊपर क्या हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है। वो कहते हैं हील टो के बाद, हील स्ट्राइक के बाद जो आपकी नी की फ्लेक्शन है, ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय योर क्वाड्रिसेप्स मसल, ठीक है, एक बार। उसके बाद वो कहते हैं कि मिड स्टैंस फेस में नी जॉइंट को एक्सटेंड करता है। मिड स्टैंस फेस क्या है कि जब ये फुट फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद ये नी की फ्लेक्शन को कंट्रोल करने के बाद इसने क्या किया,
इस टांग ने पूरे वेट को लेना है, पीछे से वेट सारा ऑफ हो जाएगा पिछले स्टेप से, इस स्टेप के ऊपर वेट आ जाएगा, तो यहां पर नी की क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन होगी। यहां पर ये जो नी की एक्सटेंशन है ड्यूरिंग द मिड स्टैंस फेज, दैट इज द फंक्शन ऑफ द क्वाड्रिसेप मसल। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि जी जो प्री स्विंग फेज है, ठीक है, जो हील ऑफ है और टो ऑफ है, ठीक है, हील ऑफ क्या है, ये मिड स्टैंस के बाद, बेटा इस पांव को देखना है, मिड स्टैंस के बाद, ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी हील ऑफ होना शुरू होगी। ठीक है, ये जो हील ऑफ होना शुरू हो रही है, यहां पर भी आपकी जो नी है वो फ्लेक्शन की तरफ जा रही है, इस नी की फ्लेक्शन को कंट्रोल कर रहा है क्वाड्रिसेप मसल। फिर ये तब तक जब तक आपका टो ऑफ नहीं हो जाता तब तक आपकी नी फ्लेक्स कर रही होती है, और उसको कंट्रोल कौन कर रहा है, क्वाड्रिसेप मसल कंट्रोल कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद कहते हैं कि इनिशियल जो स्विंग फेज है, ठीक है, उसमें एक्सेसिव हील राइज को, ठीक है, प्रिवेंट भी करता है क्वाड्रिसेप मसल। तो इन शॉर्ट क्वाड्रिसेप मसल का जो मेजर काम है वो है ड्यूरिंग द स्टैंस फेज, ठीक है, हील कांटेक्ट में क्वाड्रिसेप मसल का काम है, ठीक है, फ्लैट फुट फ्लैट के अंदर जब लोड जो है वो पिछली टांग से आपकी अगली टांग के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, उसके बाद हील ऑफ में और टो ऑफ में आपके क्वाड्रिसेप मसल का काम है। तो स्टैंस फेज में उसके किसका काम है, क्वाड्रिसेप मसल का। और वो कहता है कि हैमस्ट्रिंग का क्या काम है ड्यूरिंग द स्विंग फेज, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, ठीक है, वो आपका क्या करता है, स्विंग को कंट्रोल करता है, स्विंग फेज को। ये देखो, ये आपकी हील स्ट्राइक हुई, ठीक है, ये सारा स्टैंस फेज आ गया, उसके बाद हील ऑफ, टो ऑफ, और अब वो कहते हैं यहां से टो ऑफ के बाद जो स्विंग फेज है, ठीक है, ये एक तो कॉन्सेंट्रिकली आपका कौन कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, क्वाड्रिसेप मसल करवाएगा, और ये इस स्विंग फेज के बाद ये जो आपका नी एक्सटेंड कर रहा है फॉर द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, अब ये इसको इसेंट्रिकली कंट्रोल कर रहा है। बच्चों बात की समझ आ रही है? स्विंग फेज के इनिशियल जो फेज है, इनिशियल स्विंग से मिड स्विंग तक, इसकी जो इसको कंट्रोल कर रहा है कंसेंट्रिकली, और मिड स्विंग के बाद क्या होगा, नी एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगा। ये जो इसकी एक्सटेंशन है इसको कंट्रोल कर रहा है आपका हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप। ठीक हो गया। और वो कहता है हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप जैसे ही अगर हैमस्ट्रिंग का फंक्शन लॉस हो जाए तो आपके नी के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन डेवलप हो जाती है, जिसको हम लोग जीनू रिकर्वेटम बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है सोलियस मसल भी है और गैस्ट्रोक्नीमियस मसल भी है। ठीक है, ये जो सोलियस मसल है और गैस्ट्रोक्नीमियस मसल है, ठीक है, सोलियस मसल आपकी नी की फ्लेक्शन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्री स्विंग फेज, ठीक है, और जो कहते हैं गैस्ट्रोक्नीमियस है ये आपकी फुट फ्लैट को और हील ऑफ को कंट्रोल करता है। ठीक है, जिस तरीके से क्वाड्रिसेप मसल कर रहा है उसी तरीके से आपका गैस्ट्रोक्नीमियस कर रहा है। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि और जिस तरीके से आपका हैमस्ट्रिंग मसल ग्रुप फंक्शन कर रहा है उसी तरीके से आपका सोलियस मसल ग्रुप फंक्शन कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द नी जॉइंट। ठीक है बच्चों, किसी को इसमें कोई इशू, कोई बात समझ ना आई हो? सर अभी तो आगे जब पढ़ेंगे तो फिर आपसे पूछ लेंगे कोई कंफ्यूजन हुई तो। ठीक है बेटा, जरूर। सर जिन बच्चों को बायोला नहीं दिया, जी बेटा, उनका नेक्स्ट वीक में, इस वीक में नहीं, क्योंकि इस वीक में आप लोगों की वो हैं एससीपीज हैं, तो उनका नेक्स्ट वीक में चलेगा। ठीक है सर, हमें 2-3 दिन पहले बता दीजिएगा। हाँ जी, बस आप लोग ये रखें कि नेक्स्ट वीक में होगा, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे। ठीक है? ठीक है सर। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।